Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. मेरा नाम है CA Shikhar Tulsiya and I am back with another video on my channel. In this video, we will be talking about forensic accounting. Before we start with this topic, I'd request you all to please subscribe to my channel so that whenever I upload any content, you will get a notification of that. And I hope you all are very curious for gaining knowledge. So I'll be uploading videos relating to the concepts of commerce. So friends, what is forensic accounting? Before I get into this topic, मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली. इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है. पहले ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत पहले से मार्केट में था बट इसकी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी. So, in this video, we will be talking everything about forensic accounting and इसकी popularity क्यों recent times में increase हुई है. We will know all of that. And I request you all to please watch the whole video because this video is going to be interesting because I'll be sharing some real life examples of forensic accounting also, which will help you in understanding the term in a much better sense. And ये in the coming years, this forensic accounting is gonna be huge. So अगर आप लोगों को इसके बारे में पहले से कुछ पता होगा, so it will be beneficial for you. So I request you all to please watch the whole video. So let's start with the concept. So friends, forensic accounting, अगर हम बोले कि what is forensic accounting, so the definition says that forensic accounting is a specialty practice area where accounting, auditing, and investigative skills are used to analyze information that is suitable for use in a court of law. And according to the definition of ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India, forensic accounting is the use of professional accounting skills in matters involving the possibility of a fraud in order to collect relevant evidence and facts which could help support an expert view of potential or actual civil or criminal litigation. So I hope आप लोगों को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया होगा because the reason for that is these definitions are as per this person. I hope you all know who this person is. This is Chatur from Three Idiots, and Chatur always gives the bookish definition, and there is only one person who will be happy to hear this definition, and that person is his professor. So according to this professor, if you want to pass in the exams, you need to give the bookish definition. And अगर आपको आसान भाषा का प्रयोग करना है तो आप क्लास के बाहर जा सकते हैं. And fortunately we are not in a class right now, and exams में आजकल bookish language नहीं चलती है. We need to make the examiner understand the knowledge that we have. So uh, very confidently we can go to Baba Rancho so that he can make us understand the whole concept. So Baba Rancho says कि forensic accounting अगर आपको समझनी है तो first of all you need to understand what the word forensic means. तो फ्रेंड्स, जब भी फोरेंसिक वर्ड आप सुनते हैं तो आई होप आप सभी के माइंड में एक पर्सन की इमेज आती होगी. आप सभी को एक पर्सन की याद आती होगी, एंड दैट पर्सन इज डॉक्टर सालुके. डॉक्टर सालुके इज द फोरेंसिक एक्सपर्ट इन सीआईडी, एंड मैं द एक्चुअल इंडियन सीआईडी की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द टीवी सीरीज ऑन सोनी चैनल. So what happens is whenever ACP Pradyuman gets a case to be solved, he runs to Dr. Saluke for some expert advice on medical science. So since Dr. Saluke is a very good friend of ACP Pradyuman, so what he does is he runs a lot of tests, and he tells he does his forensic thing. He applies his medical knowledge, and he tells everything about the murder, like when the murder was committed, and what was the time, what the weapon was used, what was the cause of the death, and all. So with the help of this forensic expert, the case gets solved. So what did we understand till now from the word forensic? The word forensic means basically forensic relates to the scientific method
of solving crimes involving examining the objects or substances that are involved in the crime. तो फोरेंसिक वर्ड का मतलब है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो उस क्राइम में जो भी सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं उसको एग्जामिन करना एंड एक साइंटिफिक कुछ साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना सो दैट वी कैन सॉल्व द क्राइम. नाउ फ्रेंड्स, व्हेनेवर वी यूज द वर्ड क्राइम इन दिस डेफिनेशन, तो अगर हम इसे क्रिमिनल एक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो दिस विल अमाउंट टू मर्डर इन द जनरल सेंस. But when we are talking about forensic accounting, uh, the word crime will mean basically the frauds or the scams that takes place in a company. So what can we understand is कि जब भी किसी कंपनी में कोई स्कैम या फिर कोई फ्रॉड होता है तो उस केस में फोरेंसिक अकाउंटेंट को एंगेज किया जाता है एंड वो फोरेंसिक अकाउंटेंट क्या करते हैं, वो काफ़ी साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं एंड वो उस पर्टिकुलर केस को एग्जामिन करते हैं एंड वो ट्राई करते हैं कि वो स्कैम या फ्रॉड का क्या रीज़न था, कौन कौन से पर्सन उसमें इन्वॉल्व थे, उनका पता लगा सकें. So we will understand the whole term very clearly as we will progress through the slides. So forensic accounting encompasses both litigation support and investigative accounting. So first of all, what is litigation support? So before getting into this, all the litigation support and the investigative accounting part, मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियरली कुछ बताना चाहूँगा सो दैट आपका कॉन्सेप्ट एक बार तो क्लियर हो जाए. बेसिकली होता क्या है कि सपोज आप एक कंपनी है, उसमें कुछ फ्रॉड हुआ या कोई स्कैम हुआ, तो अब उस स्कैम के जड़ तक जाने के लिए हमें कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो दोज एक्सपर्ट्स बेसिकली नीड टू बी knowledgeable in the field of commerce, in the field of basically accounting or auditing. So उन एक्सपर्ट्स को हम फोरेंसिक अकाउंटेंट्स या फोरेंसिक ऑडिटर्स बोलते हैं. वी विल गेट टू नो ऑल्सो दैट ये सिर्फ फ्रॉड या स्कैम्स के केस में फोरेंसिक अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. देर आर लॉट मोर एरियाज, सो वी विल कवर ऑल दोज एरियाज ऑल्सो. तो बेसिकली मैं इसलिए आपको ये बताया अभी सो दैट वीडियो में आगे जाने के पहले आपको एक क्लियर एक पिक्चर हो जाए कि बेसिक वर्क क्या होता है फोरेंसिक अकाउंटेंट का. तो एज आई सेड कि litigation support and investigative accounting is they are the part of forensic accounting. What is litigation support? So litigation support provides assistance of an accounting nature in a matter involving existing or pending litigation. It deals primarily with issues related to the quantification of economic damages. तो अगर अभी जैसे लिटिगेशन वर्ड का मतलब होता है कि कोई केसेस जो भी पेंडिंग होती हैं कोर्ट में या फिर कहीं पर, बेसिकली जो कोर्ट में केसेस पेंडिंग होती हैं उन्हें लिटिगेशन बोलते हैं, जो केस जो चल रहा होता है. तो अगर कोई केस अगर पेंडिंग है तो उसमें अगर अकाउंटिंग एस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो अकाउंटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करना लिटिगेशन सपोर्ट माना जाता है. इसमें बेसिकली जो इकोनॉमिक डैमेजेस, जो मॉनेटरी टर्म्स में क्या डैमेज हुए हैं कंपनी को या किसी दूसरे स्टेक होल्डर को, उसको क्वांटिफाई किया जाता है. एंड द सेकंड लेग ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग इज इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटिंग. So investigative accounting is often associated with investigations of criminal matters. So this is what I was talking about, the scams and the frauds. तो अगर कुछ criminal activity हुई है उससे उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटिंग. तो दिस इज द अदर लेग ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग. एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिगेशन, so we must talk about the Companies Act 2013 sections that relate to inspection. So basically section 206 to section 229 deals with uh, they don't particularly deal with inspection, they deal with search and all. So the inspection section, the investigation sections that are over there, basically they say that the central government has the power to direct investigation into the affairs of a company. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई कंपनी गलत काम कर रही है तो वो डायरेक्ट कर सकती है आरओसी को या
SFIO को कि वो कंपनी के अफेयर्स में इन्वेस्टिगेट करे कि बेसिकली उस कंपनी के अंदर हो क्या रहा है। एंड SFIO जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है कॉम्प्लेक्स केसेस में, जिसमें या तो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है या इंटर डिपार्टमेंटल रैमिफिकेशंस आर इन्वॉल्व या फिर कोई फ्रॉड की पॉसिबिलिटी होती है। तो SFIO बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स मैटर्स में डील करती हैं जहाँ पे कोई फ्रॉड इन्वॉल्व होता है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट बेसिकली जहाँ इन्वॉल्व होता है। तो SFIO जो होता है, तो SFIO हैज़ एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक ऑडिट और फोरेंसिक अकाउंटिंग। तो SFIO में फोरेंसिक ऑडिटर्स, फोरेंसिक अकाउंटेंट्स होते हैं विच were the experts. And there is one very important, very important thing, that evidence which are gathered by forensic accountants are admissible in the court of law. फ्रेंड्स, होता क्या है, फोरेंसिक ऑडिटिंग या फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड जो नॉर्मल ऑडिटिंग होती है, इसके बीच में बहुत से लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑडिट में भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन कर रहे हैं, फोरेंसिक अकाउंटिंग में भी हम कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसको एग्जामिन करते हैं। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? तो फ्रेंड्स, द डिफरेंस इज, जो ऑडिट होता है, जो नॉर्मल ऑडिट जो कराया जाता है, तो इन ऑडिट द ऑडिटर गिव्स एन ओपिनियन। ओके, ऑडिटर जो होता है वो ओपिनियन देता है एंड दैट ओपिनियन इज रीजनेबल अश्योरेंस। ऑडिटर नेवर अश्योर्स कि कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं वो ट्रू एंड फेयर है। ही गिव्स अ रीजनेबल अश्योरेंस। एंड सेकेंडली, ऑडिट रिपोर्ट इज नेवर एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एविडेंस। ऑडिट रिपोर्ट एक एविडेंस नहीं मानी गई है। तो अगर आज कंपनी में कुछ कोई क्राइम होता है या कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उस केस में हम ऑडिट रिपोर्ट को एविडेंस के तौर पे वी कैन नॉट प्रोड्यूस इट। सो द सॉल्यूशन टू दैट इज फोरेंसिक अकाउंटिंग। तो फोरेंसिक अकाउंटिंग बेसिकली, जैसे ऑडिट में क्या होता है ना, ऑडिट में कंपनी के सारे अफेयर्स को चेक किया जाता है, कंपनी एज अ होल उसकी ऑडिट होती है। बट फोरेंसिक अकाउंटिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैटर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ना कि पूरी कंपनी के अकाउंट्स को, ना कि पूरी कंपनी के अफेयर्स को। फोरेंसिक अकाउंटिंग में सिर्फ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन चलती है। सो फोरेंसिक अकाउंटिंग इज वेरी वेरी डिटेल्ड ऑडिटिंग। एंड फोरेंसिक अकाउंटेंट जो भी एविडेंस गैदर करते हैं, जो रिपोर्ट फोरेंसिक अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं, दैट रिपोर्ट इज एन एविडेंस एंड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो व्हाट डज अ फोरेंसिक अकाउंटेंट डू? तो फोरेंसिक अकाउंटेंट का क्या काम होता है? फोरेंसिक अकाउंटेंट इज ऑफन retained to analyze, interpret, summarize, and present complex financial and business related issues in a manner which is both understandable and properly supported. तो आप इस डेफिनेशन को छोड़ दें, बिकॉज बाबा रैंचो कहना है कि हमें आसान आसान भाषा का प्रयोग करना है। सो अच्छा, एक बार पहले ये रीड कर लेते हैं। फोरेंसिक अकाउंटेंट इज ऑफन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। क्या क्या चीज में फोरेंसिक अकाउंटेंट इन्वॉल्व होता है? इन्वेस्टिगेटिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल एविडेंस। जो फाइनेंशियल एविडेंस उसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसको एनालाइज करना है, सो दैट इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। डेवलपिंग कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस टू असिस्ट इन द एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल एविडेंस। तो फाइनेंशियल एविडेंस को एनालाइज करना है, उसको प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए उसे कुछ कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस भी डेवलप करने पड़ते हैं। Communicating their findings in the form of reports, exhibits, and collections of documents. So, what does a forensic accountant has to do? He has to communicate whatever he has found. How he will communicate? So, he will form a report. He will, basically जो forensic accountant की report होती है, जो भी वो documents collect करते हैं, so that is how he communicates. And assisting in legal proceedings, including testifying in court as an expert witness and preparing visual aids to support trial evidence. So, forensic accountant legal proceedings जो होती है कोर्ट में, इसमें वो असिस्ट करते हैं, टेस्टिफाई करते हैं कोर्ट में एक एक्सपर्ट विटनेस के तौर पे, और काफ़ी सारे एविडेंस को प्रिपेयर करते हैं, so that the case can get solved. So now I will tell you a story. This story is the real life example of a forensic accountant. तो एक बार क्या हुआ, एक कंपनी थी, तो वो कंपनी इंडियन कंपनी थी, तो
उनका एक यूएस का वेंडर था। तो यूएस का वेंडर होने का मतलब क्या है कि कंपनी यूएस की किसी कंपनी से गुड्स प्रोक्योर करती थी, गुड्स खरीदती थी एंड इंडिया में गुड्स को सेल करती थी। तो बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि आप अपने वेंडर को पेमेंट करें, वेंडर आपको गुड्स भेजेगा एंड यू कैन सेल इट। तो जैसा हमेशा होते आया था, यूएस का वेंडर ईमेल के थ्रू इंडियन कंपनी को अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भेजते थे एंड उस अकाउंट में इंडियन कंपनी जो थी वो अपनी वो पैसा लगा देती थी एंड जो यूएस के वेंडर थे वो गुड्स भेज देते थे। तो इट वाज अ रेगुलर प्रोसेस फॉलोड एंड हर बार वो कंपनी यूएस की जो वेंडर थी वो अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भेजती थी। एक प्रोसीजर था, नॉर्मल प्रोसीजर, बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है ये कंपनीज में। तो हर बार की तरह हो रहा था, बट एक बार क्या हुआ कि जो इंडियन कंपनी थी उसको ईमेल आया उस यूएस के वेंडर का जिसमें उसने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दिए हुए थे। तो इंडियन कंपनी ने पैसा लगा दिया, बट काफ़ी दिन हो गए उसके गुड्स नहीं आए एंड अपॉन इंक्वायरी जो यूएस का वेंडर था उसने कहा कि दे हैव नॉट रिसीव द पेमेंट येट, उनको पेमेंट मिला ही नहीं है, बट इंडियन कंपनी ने तो पेमेंट लगा दिया था। सो व्हाट दे डिड दैट दे हायर्ड अ फोरेंसिक अकाउंटेंट, उन्होंने एक फोरेंसिक अकाउंटेंट की एक टीम को हायर किया टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। तो नाउ आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वो जो फोरेंसिक अकाउंटेंट को यहाँ हायर किया गया है, सो ही विल नॉट ऑडिट द कंपनी, बट व्हाट ही विल डू, ही विल इन्वेस्टिगेट इनटू द स्पेसिफिक मैटर कि जो पेमेंट हुआ था उसका क्या हुआ, व्हाई दे हैव नॉट गॉट द पेमेंट, व्हाई द इंडियन कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड द गुड्स येट। तो फोरेंसिक अकाउंटेंट ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, उन्होंने ये चेक किया कि जो ईमेल, जिस ईमेल से वो बैंक की डिटेल्स आए थे वो ईमेल ऑथेंटिक है कि नहीं। तो अपॉन इन्वेस्टिगेशन दे फाउंड दैट द ईमेल वाज ऑथेंटिक। नेक्स्ट व्हाट दे डिड, जो एक बहुत ही बेसिक फर्स्ट स्टेप होता है, दे वेंट टू द बैंक, द इंडियन बैंक जिसके थ्रू पेमेंट रूट हुआ था। They went to the bank, they had the transaction ID and all. So they went to the bank and inquired about the transaction. So upon inquiry, they get to know, they got to know that कि जो पेमेंट है इंडियन बैंक के काउंटर पार्ट पे वो पेमेंट प्रोसीड हो चुका है, दैट पेमेंट हैड बीन मेड। तो अब ये तो श्योर हो गया था कि जो इंडियन कंपनी है उसने पेमेंट किया है। सो नाउ द क्वेश्चन वाज कि अगर इंडियन कंपनी ने पेमेंट किया और यूएस के वेंडर को पेमेंट नहीं मिला तो वो पैसा गया कहाँ। तो जो फोरेंसिक अकाउंटेंट की टीम थी उन्होंने यूएस के वेंडर से ये रिक्वेस्ट की कि सिंस दे इंडियन बैंक को तो उन्होंने अप्रोच कर लिया था बट दे कैन नॉट अप्रोच द यूएस बैंक ना। तो दे रिक्वेस्टेड द यूएस वेंडर टू गो टू देयर रेस्पेक्टिव बैंक एंड इंक्वायर कि पैसा आया क्यों नहीं या व्हाट इज द सिचुएशन ओवर देयर। लेकिन वेरी सरप्राइजिंगली यूएस के वेंडर ने मना कर दिया। दे सेड कि नहीं, वी विल नॉट गो देयर बिकॉज हम अपना बहुत सिंपल लोग हैं, वी आर डूइंग आवर बिजनेस, द सिंपल थिंग इज दैट वेन एवर वी रिसीव द पेमेंट वी सेंड द गुड्स, बट दिस टाइम वी हैव नॉट रिसीव द पेमेंट, सो इट्स नॉट आवर फॉल्ट, व्हाई विल वी बॉदर। तो उन्होंने मना कर दिया एंड फिर तो इस ये जब उन्होंने मना किया तो इसके वजह से जो फोरेंसिक अकाउंटेंट्स थे उनको शक हुआ कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ फ्रॉड इन्वॉल्व है। देन व्हाट दे डिड कि दे हायर्ड सम आईटी एक्सपर्ट्स जो ट्रैक जो बेसिकली ये दे मेड श्योर कि जो ईमेल आईडी था वो ऑथेंटिक था एंड उससे रिलेटेड वो चीज़ उन्होंने जो आईटी एक्सपर्ट्स थे दे डिड दैट एंड फिर उसके बाद जो फोरेंसिक अकाउंटेंट्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया यूएस के वेंडर्स को। तो द रिप्लाई दैट दे गॉट वाज कि यूएस वेंडर ने बोला कि हो सकता है हम, हाँ एक्चुअली हुआ क्या था उसके बीच में कि जब बैंक का जो डिटेल्स था ना जो इंडियन कंपनी को मिला था, तो जब इंडियन बैंक के थ्रू जब वो पता किया गया तो जिस बैंक में रेगुलर जो जो हमेशा पेमेंट नॉर्मली जाता था तो जो बेनिफिशियरी नेम था वो सेम था बट अकाउंट दूसरा था। व्हाट हैपेंड ओवर देयर वाज कि एक्स वाई जेड कंपनी अगर यूएस की है तो जो बैंक अकाउंट का नेम था ना वो एक्स वाई जेड कंपनी के नाम पर ही था, बट बैंक अकाउंट का नंबर में डिफरेंस था। तो अब ये पता चल गया था कि पेमेंट किसी और को जा चुका है, बट ऐसा कैसे हुआ। अगर आप अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से आप मेल किए हैं
तो आप गलत बैंक अकाउंट कैसे मेल कर सकते हैं? और अगर आप ऐसा किए तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर दी वन हु हैज मेड अ मिस्टेक। तो जब ये बात पता चली तो फोरेंसिक अकाउंटेंट्स ने यूएस के वेंडर से बात की। तो जब उनको ये बात बताया गया कि आपने जो ईमेल भेजा है जिसमें आपने बैंक के डिटेल्स भेजे हैं, दे आर रॉन्ग, दैट्स व्हाई द पेमेंट यू हैव दैट्स व्हाई यू हैव नॉट रिसीव्ड द पेमेंट। तो उस पर यूएस के वेंडर ने बोला कि हमारा ईमेल आईडी हैक हो गया होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आवर ईमेल आईडी माइट हैव गॉट हैक्ड। नाउ दैट्स अ वेरी सीरियस इशू बिकॉज दिस अमाउंट्स टू साइबर क्राइम। जो फोरेंसिक अकाउंटेंट्स की टीम थी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक काम करिए, आप अपने एरिया में आप एक पुलिस में आप एक रिपोर्ट फाइल कर दीजिए कि आपका ईमेल हैक हुआ है, आप साइबर सेल में आप रिपोर्ट फाइल कर दीजिए। बट वेरी सरप्राइजिंगली अगेन दे रिफ्यूज टू दिस। दे सेड कि आप लोग हमें हैरेस कर रहे हैं एंड हमें आप हमारा बिजनेस नहीं करने दे रहे हैं, यू आर हैरेसिंग अस एंड the US vendor sent a notice to the company to stop harassing them. So now what happened is the forensic accountants, what they did was they prepared they were like while, during the course of the investigation, वो लोग को सारा डिटेल्स रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो when they sat together with all the information that they have got till now, तो they understood कि ये एक फ्रॉड है जो यूएस के वेंडर जो है वो कर रहे हैं। बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर आप अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से आप कोई डिटेल भेजते हैं एंड वो गलत है, तो इसमें इंडियन कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है। तो आप ना तो बैंक में जा कर के आप इसके अगेंस्ट कुछ करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, और अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपका ईमेल हैक हो गया था, तो आप पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं आप फाइल कर रहे हैं, आप साइबर सेल में भी आप रिपोर्ट फाइल नहीं कर रहे हैं। देयर इज समथिंग फिशी ओवर देयर। तो व्हाट दे डिड कि दे प्रिपेयर्ड अ होल रिपोर्ट ऑन दैट। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने उनको क्लियरली मेंशन किया कि वी हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पर आप कुछ फ्रॉड कर रहे हैं बिकॉज यू आर द कल्प्रिट ओवर हियर, दैट इज प्रीटी क्लियर फ्रॉम ऑल द एविडेंसेस दैट वी हैव गॉट। एंड अगर आप विद इन 10 days या जो भी विद इन इतना डेज अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, यू विल गेट अ नोटिस फ्रॉम द यूएस कोर्ट। आपके खिलाफ लीगल नोटिस, आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। एंड उनको सारी पेनल्टीज वगैरह बता दी कि जो भी अमाउंट था वो अमाउंट आपको देना पड़ेगा, प्लस पेनल्टी लगेगा, प्लस इंटरेस्ट लगेगा, प्लस हमारे जो चार्जेस हैं वो लगेंगे, प्लस जेल होगी, जो भी जितने भी थे ना वो सारा उनको बता दिया। एंड फिर जब जो यूएस के वेंडर थे, जो उस कंपनी का जो डायरेक्टर था, जब उसको ये रिपोर्ट मिली तो फिर वो समझ गया कि अब हमारा पोल खुल चुका है। तो दे कॉल्ड द इंडियन कंपनी, दे कॉल्ड द टीम ऑफ द फोरेंसिक अकाउंटेंट्स एंड दे रिक्वेस्टेड कि देखिए अब जो भी हुआ उसको आप भूल जाइए, अगर आप बोल रहे हैं कि आप पेमेंट किए हैं तो ठीक है, हम लोग आपको उसका माल भेज देंगे एंड आप इस बात को ख़त्म कर दीजिए। एंड एंड फोरेंसिक अकाउंटेंट जो होते हैं ना, तो दे आर ग्लोबली रिकग्नाइज। इसीलिए यूएस की कोर्ट, मतलब इसीलिए वो ये चीज़ समझ गए थे कि हाँ दे हैव अ रीच की हमारे हमारे यूएस के जुरिस्डिक्शन में से हमारे खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। तो इन दिस केस व्हाट वी गॉट टू नो कि जो फोरेंसिक अकाउंटेंट्स थे उन्होंने पूरा एविडेंस प्रिपेयर किया, सारा कुछ, दे गॉट इनटू द डेप्थ ऑफ द मैटर एंड दे सॉल्व द केस। तो आप एक बात बताइए, अगर यहाँ पर अगर फोरेंसिक अकाउंटेंट अगर नहीं होते तो ये काम कौन करता? क्योंकि दिस इज नॉट द वर्क ऑफ एन ऑडिटर। एंड कंपनी भी कितना ज़्यादा माथा, मतलब कितना माथा लगाती है इसमें, बिकॉज उसको अपना तो बिजनेस अपना चलाना ही है ना, तो वो तो उसमें लगी रहती है एनी टाइम। तो दिस इज द वर्क ऑफ द फोरेंसिक अकाउंटेंट बेसिकली, कि वो एनालाइज करते हैं, एविडेंस गैदर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं मैटर्स में। So this was the case and so I hope इस एग्जाम्पल के बाद आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा कि what does a forensic accountant do। So now forensic accountants जो होते हैं वो किस टाइप के असाइनमेंट्स करते हैं। तो डिटेल्ड बिलो आर वेरियस एरियाज इन विच अ फोरेंसिक अकाउंटेंट विल ऑफन बिकम इन्वॉल्व। तो फोरेंसिक अकाउंटेंट कौन कौन से एरियाज में इन्वॉल्व, मतलब कौन कौन से एरियाज में वो काम करते हैं। द फर्स्ट एरिया इज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। तो अगर जो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसमें जो भी फाइनेंशियल लेग होता है उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं। इसका जो यू नो
अभी एक बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है, जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर मिस्ट्री केस है। तो आप इसमें अभी जो रिया चक्रवर्ती का जो नाम आया था, एंड कि उसने सुशांत के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाले, उसे क्या मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस वगैरह हुआ, उसमें ग्रांट थॉर्टन को एज अ फोरेंसिक अकाउंटेंट, एज अ फोरेंसिक ऑडिटर हायर किया गया था। सो दिस इज द मोस्ट रिसेंट एग्जांपल ऑफ द केस ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जिसमें फोरेंसिक अकाउंटेंट का रोल होता है। नेक्स्ट, अगर शेयर होल्डर्स या फिर पार्टनर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो उसमें फोरेंसिक अकाउंटेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसमें फोरेंसिक अकाउंटेंट रोल प्ले करते हैं एंड दे सॉल्व द डिस्प्यूट। पर्सनल इंजरी क्लेम्स और मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, या फिर बिजनेस इंटरप्शन और अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स। तो बेसिकली इंश्योरेंस क्लेम्स जो होते हैं ना, तो अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम फाइल करती है, तो बहुत बार इंश्योरेंस कंपनी फोरेंसिक अकाउंटेंट्स को हायर करती है, so that they can investigate into the matter that whether actually the company has suffered the insured has actually suffered the loss or not. Next, बिजनेस और एम्प्लॉय फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। अगर बिजनेस में या ये अगर अगर कोई बिजनेस अगर कोई फ्रॉड किया या फिर कोई अगर एम्प्लॉय फ्रॉड किया, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने में, तो ये वही है जो मैंने अभी आपको एक बड़ा सा एग्जांपल दिया। नेक्स्ट इज मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। तो अब आप सोचेंगे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में क्या काम है फोरेंसिक अकाउंटेंट का। तो सपोज क्या होता है कि जब भी डाइवोर्स होता है, तो उस केस में जो एलिमनी जो मिलती है वाइफ को, तो जितने भी जो भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी होती है, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाती है। तो अब वो प्रॉपर्टी, अब हस्बैंड बोलेगा मेरी इतनी सी प्रॉपर्टी है, बट वाइफ बोलेगी नहीं मुझे पता है इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, ये वो। तो उस केस में बहुत बार फोरेंसिक अकाउंटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड दे इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। वो पता लगाते हैं कि एक्चुअल में हस्बैंड की क्या प्रॉपर्टी थी, एंड फिर वाइफ को एलिमनी मिलती है। नेक्स्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक लॉसेस। अगर बिजनेस रिपोर्ट करते हैं कि हमारे ह्यूज लॉसेस हुए, तो उसमें भी फोरेंसिक अकाउंटेंट अपना रोल प्ले करते हैं कि वो पता लगाते हैं कि एक्चुअल में कितने लॉसेस हुए थे। अगर कोई प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का केस है, या फिर मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। मीडिएशन आर्बिट्रेशन क्या होता है कि कोर्ट के बाहर जो डिस्प्यूट सेटल होते हैं ना, बिकॉज हमेशा हर बार सब कोई कोर्ट नहीं जाते हैं, बिकॉज कोर्ट जाना इज नॉट अ हेल्दी थिंग, कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लॉयर के झंझट, काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है ये सब। तो बहुत बार क्या होता है, आर्बिट्रेटर को हायर किया जाता है जो कि डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। आर्बिट्रेटर इज थर्ड पार्टी। मीडिएटर जो होते हैं वो थर्ड पार्टी होते हैं जो डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं इम्पार्शियली, वो डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। तो उस केस में फोरेंसिक अकाउंटेंट को हायर किया जाता है, जिसमें वो इन्वेस्टिगेट करता है मैटर पे। तो आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा सारा कुछ बहुत अच्छे से। नाउ हु एंगेजेस अ फोरेंसिक अकाउंटेंट। तो फोरेंसिक अकाउंटेंट को कौन एंगेज करता है? तो लॉयर्स करते हैं, पुलिस फोर्स करती है, सीबीआई, ये सब इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज करती हैं, बैंक्स करते हैं, कोर्ट्स करते हैं, एंड बिजनेस कम्युनिटी करती है। नाउ what qualifications do forensic accountants hold? It's a very important topic कि इतने देर से तो बात कर रहा हूँ कि फोरेंसिक अकाउंटेंट्स, तो भाई फोरेंसिक अकाउंटेंट्स होते कौन है, मतलब कौन सी। अब ऑडिटर कौन होते हैं? ऑडिटर्स आदि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेसिकली। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की बात कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑडिटर कौन होते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं। तो हु आर फोरेंसिक अकाउंटेंट्स? तो फोरेंसिक अकाउंटेंट्स के लिए आपको सर्टिफाइड फोरेंसिक अकाउंटेंट होना पड़ेगा, सीएफए जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, सर्टिफाइड फोरेंसिक अकाउंटेंट। नेक्स्ट, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, यू कैन बी अ सीएफई आल्सो। नेक्स्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन आल्सो बी forensic accountants. Next is certified value analyst. CPA are also eligible to be forensic accountants. Certified public accountant CPA, certified in financial forensics CFF, certified management accountant CMA, and investigative and forensic accountant IFA. तो ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं जो एलिजिबल हैं फोरेंसिक अकाउंटेंट्स एज अ फोरेंसिक अकाउंटेंट हायर होने के लिए। तो इफ यू वांट टू बी एन फोरेंसिक इफ यू वांट टू बी फोरेंसिक अकाउंटेंट, then you will have to get any of the above degrees. गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो जो मेन फोरेंसिक अकाउंटेंट्स की जो डिग्री है, दैट इज सीएफए, सर्टिफाइड फोरेंसिक अकाउंटेंट, एंड सीएफई, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर। तो अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको इसके डिटेल्स दूं, तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। बिकॉज ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है इन द कमिंग टाइम, बिकॉज यू ऑल नो कि जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ चुका है।
एंड पहले कोई भी क्राइम करने के लिए मास्क एंड गन्स का यूज होता था, बट आज के टाइम पे क्राइम करने के लिए माउस एंड कीबोर्ड का यूज होता है. So please write it down in the comment section so that I can make a video on that. Next is I will talk about what are the steps taken by ICAI. So basically जो Institute of Chartered Accountants of India है ये so it is a very proud moment for all the members of ICAI and all the persons who are connected with ICAI, and moreover we can say that as an Indian citizen we can be very proud कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है, इट इज़ द फर्स्ट अकाउंटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड जो कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर में एक फॉर्मल स्टैंडर्ड्स लाएगा. अभी तक कोई भी अकाउंटिंग बॉडी वर्ल्ड में स्टैंडर्ड्स नहीं लाई है. जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं, तो वैसे ही फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स FAIS, तो ICAI will be the first accounting body in the world which will formally adopt a set of standards. Now इसके रिगार्डिंग ICAI ने 27 अगस्त को एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू किया है, जिसमें उसने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे उनका ओपिनियन एंड कमेंट्स मांगा है. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं वे दे विल बी रिलीज्ड. So I will quickly take you through the exposure draft that ICAI has issued. So the highlighted orange portion will be discussed in this video. So what are the basic principles that forensic accountants must have? So they should be independent and neutral. Next is the forensic accountants shall be honest, truthful, and a person of high integrity. So integrity and objectivity. Next is the forensic accountant shall exercise due professional care and diligence. Next is the professional shall at all times maintain the confidentiality of all the information acquired during the course of work. तो कोई भी information, confidential information disclose नहीं करना है. The professional shall undertake only those engagements for which they have the requisite competence. तो अगर किसी प्रोफेशनल को, किसी फोरेंसिक अकाउंटेंट को लगता है कि वो कोई केस हैंडल नहीं कर पाएंगे, उनकी कॉम्पिटेंस नहीं है उस केस में, तो दे शुड नॉट अंडरटेक दैट असाइनमेंट. नेक्स्ट इज कि द प्रोफेशनल शैल हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन. एक चार्टर्ड अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन सप्लीमेंटेड विद लीगल क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कोर्स आर आइडियल. तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड आपके पास कोई लीगल क्वालिफिकेशन जो CFA CFE का बात कर रहा था, या फिर आपके पास CA कोर्स एक पोस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कोर्स भी ऑफर करता है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, तो अगर आपके पास वो भी है तो इट विल बी वेरी आइडियल. ग्लोबल क्वालिफिकेशन सच एज सर्टिफाइड फॉर द एग्जामिनर आल्सो कैरी रिक्विजिट वेटेज. नेक्स्ट इज कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ सिचुएशन. तो जो फॉरेंसिक एंगेजमेंट होते हैं ना, दे कैन नॉट बी कंडक्टेड इन आइसोलेशन बिकॉज कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन समझना पड़ता है, उसके बाद में आप इंडिविजुअल से जो कल्पेबिलिटी है उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्राइमेसी ऑफ ट्रूथ. तो इन एनी FAI एंगेजमेंट ऑल एक्टिविटी शैल बी सेंटर्ड अराउंड फाइंडिंग द ट्रूथ. तो आपको सच का पता लगाना है, तो आपको उसी के आसपास आपको अपने एक्टिविटीज को देखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज रिस्पेक्टिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. तो जैसे प्रोफेशनल्स के राइट होते हैं ना एग्जामिन करने के, तो वैसे ही जो सस्पेक्टेड पार्टीज होते हैं उनके भी सिमिलर राइट्स होते हैं. एंड द नेक्स्ट इज सेग्रीगेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियन. तो FAI एंगेजमेंट इज प्रीडोमिनेंटली अ फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज. एक फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज होता है. FAI प्रोफेशनल्स को इंश्योर करना पड़ता है कि उनका जो पर्सनल जजमेंट है, बायसनेस है, वो एक्सरसाइज में नहीं आए. एंड द नेक्स्ट वन इज क्वालिटी एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. FAI प्रोफेशनल्स को इंश्योर करना होगा कि फैक्चुअल ऑथेंटिसिटी ऑफ एविडेंस जो ऑब्टेन किए, एक्यूरेसी को वैलिडेट करना होगा एंड कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना होगा क्वालिटी, जो प्रोसेस वो लोग फॉलो किए उसकी. जो इफेक्टिव डेट है वो बेसिकली जब ICAI काउंसिल जो डेट नोटिफाई करेगी उससे इफेक्टिव डेट पता चलेगा. एंड इन द प्रीफेस दैट इज रिलीज्ड we can get to know that the forensic accounting and investigation standards जो आएंगे, they will be a minimum set of requirements that will apply to all the members of the ICAI when performing assignments in forensic accounting. तो अगर
आईसीआई के सारे मेंबर्स को ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई करेंगे जो भी फोरेंसिक अकाउंटिंग के एंगेजमेंट को में आप एंगेज कर रहे हैं अगर। तो वाइल ऑल द मेंबर्स ऑफ आईसीआई आर मैंडेटेड, आईसीआई के मेंबर्स को मैंडेटरी है, बट जो अदर नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए रिकमेंडेटरी है कि आप इन स्टैंडर्ड्स को आप अडॉप्ट करें। नेक्स्ट, जो आईसीआई ये जो स्टैंडर्ड्स को जो मैंडेट करेगा वो एक फेज्ड मैनर में करेगा, मतलब धीरे धीरे करके होगा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ आईसीआई मेंबर टू एंश्योर दैट दे कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स, आईसीआई मेंबर को इंश्योर करना होगा कि वो स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं। एंड जो स्टैंडर्ड्स आएंगे उनकी 100 सीरीज 200 सीरीज इस तरह की सीरीज में आएंगी। तो ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो पढ़ रखे हैं स्टूडेंट्स हमारे या मेंबर्स जो फ्रेंड्स हमारे, दे विल रिलेट टू दिस कि ये सीरीज क्या होती है। एंड जो वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं वो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, आरबीआई है, सेबी है, एनसीआरबी है, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी, एसएफआईओ, एनसीएलटी, आईडीबीआई, यू नो सॉरी आईडी आईडीबीआई, इरडा, सीबीडीटी, ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस एजेंसी, साइबर क्राइम सेल्स एंड ऑल। तो 31 स्टेक होल्डर्स की लिस्ट दी गई है यहाँ पे। This was the exposure draft that was issued by ICI for the comments from the members and the other stakeholders. So as I was talking about the post qualification course, तो ICI ने post qualification certificate course दिया है forensic accounting and fraud detection के ऊपर। तो जो भी हमारे CA members हैं, they can pursue this certificate course and get an edge over other members, other professionals. एंड द लास्ट पॉइंट इज कि आईसीआई ने सीए फाइनल ऑडिट पेपर में एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है जो उसका न्यू सिलेबस है, उसमें फोरेंसिक ऑडिट पे। तो वी कैन सी दैट आईसीआई बहुत ही प्रोएक्टिव है फोरेंसिक ऑडिटिंग, फोरेंसिक अकाउंटिंग को लेकर। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा फोरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में। आई होप मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया होगा। So thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and comment your queries. Thank you very much.